स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़। तो एसिड्स जो होते हैं, कल हमने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा था। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है, और जब ये इस सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं हम इन वाटर, इट गिव्स H पॉजिटिव आयन्स इन द सॉल्यूशन. So we can say that acids are the substances which contain hydrogen and which when dissolved in water give hydrogen ions in the solution. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसे, acids are the substances which contain hydrogen and when dissolved in water gives H positive ions in the solution. हमारे पास and this definition is called the Arrhenius definition. ये बहुत पुरानी definition है acids की and is called the Arrhenius definition, जो कि Arrhenius ने दी थी in 1884. तो अब हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो वाले सब्सटेंसेस उन्हें हम एसिड्स नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो डिज़ोल्व होते हैं इन वाटर, दे डू नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन्स। तो इनके लिए एक प्रीरिक्विजिट ये है कि वो सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन होता है लेकिन जब वो डिज़ोल्व होते हैं इन वाटर, दे शुड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन्स। तो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस है लाइक इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल। और हमारे पास ग्लूकोज है, C6H12O6, दिस इज़ ग्लूकोज। इनमें हाइड्रोजन है, लेकिन these substances when dissolved in water they do not produce H positive ions. So we cannot call them acids. हम इन्हें acids नहीं कहते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा acids वो substances होते हैं जो हम dissolve करते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है, और जब dissolve करते हैं इनको in water they give H positive ions. These substances they have hydrogen but they do not produce H positive ions when dissolved in water, so they cannot be called as acids. It means कि all the hydrogen containing compounds are not acidic. जो भी hydrogen containing compounds हैं उन सब को हम acids नहीं कह सकते, उनमें से सिर्फ उनको acids कह सकते हैं जो once when dissolved in water produce H positive ions. And there are some other definitions also of the acids, like there are Lewis acids and bases. Lewis acids, it was the concept given by G.N. Lewis in 1923. तो according to Lewis, acid जो है वो it is any substance such as H positive which ions which accept a pair of electrons. So acids वो substances होते हैं that accept a pair of electrons. इसी तरह से about bases भी Lewis का concept है, Lewis bases। वो जब हम bases पढ़ेंगे तो उस टाइम हम about Lewis bases भी पढ़ेंगे। इसी तरह से Lowry-Bronsted concept है, Bronsted-Lowry जिसे हम कहते हैं, Bronsted-Lowry concept of acids and bases. तो according to this, the acids are those substances which can donate H positive, या जिन्हें हम protons कहते हैं, which can donate H positive ions. तो different concepts of acids and bases हैं हमारे पास। तो अभी फ़िलहाल आपने जो आपके सिलेबस में है, that is the Arrhenius concept or Arrhenius definition of the acids. And according to that, acids are the substances which contain hydrogen and which when dissolved in water they give H positive ions. तो ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना कि which when dissolved in water they give H positive ions, क्योंकि acid जो है it acts as an acid because of H positive ions. जो है H positive ions होते हैं इसमें, it acts as an acid because of H positive ions और hydronium ions. क्योंकि जो ये hydronium ion किसे कहते हैं, जो ये H positive ion होता है जब acid water में dissolve होकर H positive ions देता है, and it can combine with water. another molecules of the water. H positives can combine with another molecule of the water to form hydronium ions, H3O positive. This is called the hydronium ion.
hydronium ion. So the properties of an acid are due to this H positive ion, or you can say due to the hydronium ion, which is H3O positive, which it gives in the aqueous solution. तो अब हम पढ़ेंगे about some properties of the acids. जो acids की properties होते हैं, reactions होते हैं, उनके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो general properties होती हैं acids की, general properties of acids, तो उनमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक दे हैव गॉट sour taste, खट्टे होते हैं, sour taste. और नंबर सेकेंड, वी कैन से दैट acids turn blue litmus solution red. Acids turn blue litmus, जो कल हमने पढ़ा था, solution into red color, into red. इसी तरह से जो methyl orange है, which is an indicator, methyl orange turns red when it is put in the acidic substance. तो methyl orange जो है, it is an acid base indicator. जब ये acidic solution में हम ऐड करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन में, तो ये रेड बन जाता है. इसका अपना कलर जो है वो ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज से चेंज होके रेड कलर बन जाता है. तो देन देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, दे आर कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव मीन्स the acids they produce burning sensation if put on the skin. अगर हम स्किन के ऊपर थोड़ा सा भी एसिड लग जाएगा तो वो burning sensation करता है. It can produce holes in clothes and even it can ये जो metal structures होते हैं या marbles होते हैं या containers होते हैं, तो उनको ये corrode करता है, उनको ख़राब कर देता है एसिड. तो so it is corrosive in nature. That's why acids they are stored in the containers made of glass. तो ये गिलास के containers में, जो गिलास के कंटेनर होते हैं, गिलास कंटेनर्स, उनमें स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये मेटल कंटेनर्स को ख़राब कर देता है. इट कोरोड्स द मेटल कंटेनर्स एंड दैट्स व्हाई देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर मार्क. एक डेंजर मार्क होता है लाइक दिस, विच इज़ पुट ऑन द कंटेनर्स इन विच द एसिड्स आर स्टोर्ड. और डेंजर भी लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं इन नेचर. तो इसी तरह से देयर आर सम रिएक्शंस, लाइक रिएक्शंस विथ metals, reactions with metals के साथ acids कैसे react करते हैं. जैसे आपने पहले भी पढ़ा था कि acids react with metals to form the metal salt and hydrogen. तो हम general reaction यहाँ पे लिख सकते हैं, metal plus acid, it gives metal salt plus hydrogen gas. ये एक जनरल रिएक्शन है. अब आप अप्लाई कर सकते हैं इसे ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेटल्स. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास मेटल जिंक है, जिंक प्लस एसिड हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इट्स कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स. तो ये सॉल्ट बनाता है, मेटल सॉल्ट, लाइक जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस हाइड्रोजन गैस. दिस इज जिंक सल्फेट सॉल्ट. दिस इज द मेटल सॉल्ट दैट हैज बीन फॉर्म्ड. एंड similarly, if you add HCl to or you put zinc granules in the HCl, तो यहाँ पर ये मेटल है, ये एसिड है, तो मेटल सॉल्ट बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा दिस टाइम, ZnCl2 aqueous. दिस इज aqueous प्लस हाइड्रोजन गैस. तो मेटल्स जो हैं, एसिड्स जो हैं, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. तो मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद ये मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं. तो देयर आर सम अदर रिएक्शंस लाइक एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे एक जनरल रिएक्शन. जो एसिड्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं विद मेटल कार्बोनेट्स, और मेटल बाइकार्बोनेट्स, जिन्हें हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहते हैं. मेटल बाइकार्बोनेट्स
प्लस एसिड्स, ये जनरल रिएक्शन है। तो ये क्या देगा प्रोडक्ट, ये एक तो मेटल सॉल्ट देता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है और वाटर भी देता है। दिस इज द जनरल रिएक्शन। अब आप इसको रिएक्शन को देख सकते हैं किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ, लाइक यू हैव सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, this is the sodium carbonate plus sulfuric acid H2SO4। तो मेटल कार्बोनेट है ये, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक तो मेटल सॉल्ट हमें देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा एज ए प्रोडक्ट, दैट इज सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज सोडियम सल्फेट, this is water and carbon dioxide. So sodium sulfate is a salt, as already mentioned, as a product, and then carbon dioxide also, and then water also. तो इसी तरह से ये तो हो गया मेटल कार्बोनेट, और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स यही मेटल सॉल्ट देता है, वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कॉल्ड द सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं, वंस अगेन इट विल गिव सॉल्ट। HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो NaCl देगा, दिस इज मेटल सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास कार्बोनेट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3, इट इज़ अ कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस HCl जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो सॉल्ट हो गया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग शेल्स होते हैं दे आल्सो कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। एग शेल्स, जो एग्स होते हैं, जो उनके ऊपर वो हार्ड शेल्स होते हैं, दे आल्सो कंटेन कैल्शियम क्लोराइड। तो वो उनके ऊपर भी अगर हम एसिड डालेंगे, HCl डालेंगे, तो वो एग शेल जो है वो बहुत ज़्यादा नरम होके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे वहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो उतना हार्ड नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएगा और हम आराम से उसको बैंड कर सकते हैं। तो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ द एसिड्स विथ द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो इसके बाद जो एसिड्स होते हैं वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी करते हैं। तो हम ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी, एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन द एक्वस सॉल्यूशंस। आपको पता होगा जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बट डिस्टिल्ड वाटर दैट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें व्हाट इज द concept behind it, why does the rain water conduct electricity and why doesn't the distilled water conduct electricity? इसमें वजह ये, रीज़न ये है कि जो distilled water होता है it does not contain any acid base or salt, क्योंकि अगर उसमें कोई एसिड बेस और सॉल्ट होता तो वो डिसोसिएट हो जाता टू प्रोड्यूस आयंस और वो फिर कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन इसमें डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एसिड बेस और सॉल्ट, सो विच में डिसोसिएट हो जाता है। जब इसमें है ही नहीं तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के और सल्फर डाइऑक्साइड या और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये गैसेस वाटर में, रेन वाटर में डिजॉल्व होके दे फॉर्म एसिड्स, वो एसिड्स बनाते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर, रेन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो वो बाद में H पॉजिटिव आयंस देता है जो, या कार्बोनेट आयंस देता है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। दैट्स व्हाई दैट रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्टिल्ड वाटर दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद रिएक्शंस विथ बेसिस, वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। एसिड्स रिएक्ट विथ बेसिस, एसिड्स रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म salts and water,
तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बना देता है प्रोडक्ट एंड वाटर, एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जो आपने पहले ही पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड देन इट रिएक्ट्स विद बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट फॉर्म्स सॉल्ट NaCl प्लस वाटर H2O। तो ये इट वाज अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द एसिड्स। तो एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो विच आर ऑर्गेनिक, एंड देयर आर सम एसिड्स विच आर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक एसिड्स। एंड यहाँ पे थोड़ा सा लिखूँगा मैं, ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड्स। लाइक यू हैव हमारे ऑरेंज और लेमन्स में स्ट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज एंड लेमन्स उनमें साइट्रिक एसिड होता है। इसी तरह से एप्पल्स में, जो हम एप्पल्स खाते हैं उनमें मैलिक एसिड होता है, देयर इज अ मैलिक एसिड। इसी तरह से टोमेटोज, उनमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स। इसी तरह से हमारे पास टैमरिन है, उसमें टाटारिक एसिड होता है। सॉ मिल्क में उसमें लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो दे आर द ऑर्गेनिक एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर। इसी तरह से और एवरीडे लाइफ में भी हम ये एसिड्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास अब मिनरल एसिड्स होते हैं, दे आर द एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ। सो मिनरल एसिड्स or inorganic acids, they are the acids obtained from minerals। जो हम मिनरल्स से obtain करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 दिस इज एन इनऑर्गेनिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ फाउंड इन आवर स्टमक ऑल्सो। आपने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जब मैं बायोलॉजी में पढ़ाता था तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस हो जाता है, एंड इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अब मुझे कहना क्या है यहाँ पे कि ये जो HCl हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो गया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा वेदर इट इज़ एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी पढ़ा कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और लिविंग सेल्स। तो हम तो लिविंग थिंग्स हैं, हमारे स्टमक में सेल्स हैं, दे आर द लिविंग सेल्स। तो उनमें से जब कोई एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो यू मस्ट थिंक, आपको सोचना है, सबसे पहले तो दिमाग में आपके ये आएगा कि ये ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन आपने सोचना है कि वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में पहले आएगा कि ये ऑर्गेनिक है, बट इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड विच इज़ फाउंड इन आवर स्टमक, जो हमारी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। दिस इज़ एन इनऑर्गेनिक एसिड। ये क्यों इनऑर्गेनिक एसिड है? क्योंकि इस एसिड में कार्बन, HCl में देयर इज़ नो कार्बन, इसमें कार्बन है ही नहीं। अगर इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो वी मस्ट हैव, तो हमें समझ में आ जाता कि ये ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए ये ज़रूरी है देयर मस्ट बी ए कार्बन। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे है लेकिन कार्बन नहीं है। अगर कार्बन भी होता तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता, लेकिन since there is no carbon, so we cannot call it as an organic acid. Though it is produced in our stomach by living cells, still it is called the inorganic acid because there is no carbon in HCl. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जो हमारे पास जो ये मिनरल एसिड्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे आर वीकर एसिड्स, वो वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू दीज एसिड्स। सो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा अबाउट द बेसिस एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।